ایران کے خیبر شکر میزائل سے سہمی ریاست پر قیامت ڈھا دی۔ اسرائیل کے 116 مقامات پر جوابی حملے۔ تل ابیب میں کئی بلند عمارتیں کھنڈرات میں تبدیل۔ ایرانی کلسٹر بموں نے تل ابیب کے 16 مقامات کو ٹارگٹ کیا۔ اسرائیلی میڈیا کی تصدیق۔ ایران نے آج رات سے اسرائیلی اور امریکی اڈوں پر حملے مزید تیز کرنے کا اعلان کر دیا۔ ڈرون آپریشنز میں 20 اور میزائل آپریشنز میں 100% اضافہ کیا جائے گا۔ پاسداران انقلاب نے خبردار کر دیا کہ جارحیت کے خلاف دفاعی قوت مستحکم ہے، اب فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ اسرائیل کے ایران پر مزید حملے۔ ایرانی شہر قم میں 2 دھماکے سنے گئے۔ اسرائیلی فوج کا نئے نامزد ایرانی چیف آف سٹاف اور خاتم الانبیاء کے کمانڈر ابو القاسم کو شہید کرنے کا دعویٰ۔ امریکی طیاروں نے ایران کے محراب گرلز اسکول پر 40 منٹ کے وقفے سے دوبارہ بمباری کی۔ حملے میں 165 طالبات شہید ہوئی تھیں۔ سعودی عرب کے رہائشی علاقے میں پروجیکٹائل گرنے سے 2 افراد جاں بحق، 12 زخمی۔ جاں بحق ہونے والوں میں ایک بھارتی اور دوسرا بنگلہ دیشی شہری ہے۔ لیبنان پر اسرائیل کے فضائی حملے تیز، مزید 4 افراد شہید۔ شہادتوں کی مجموعی تعداد تقریباً 400 ہو گئی۔ حزب اللہ کی جوابی کارروائی میں 2 اسرائیلی فوجی ہلاک۔ آبنائے ہرمز کی بندش پر کویت کے بعد عراقی تیل کی پیداوار میں بڑی کمی۔ حکام کے مطابق پیداوار 70% سے کم ہو کر 13 لاکھ بیرل روزانہ رہی۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی شدید تنقید کے بعد برطانیہ نے فوجی اڈہ استعمال کرنے کی اجازت دے دی۔ امریکی فضائیہ کے لاک ہیڈ طیاروں کی قبرص آمد۔ اور غزہ میں جنگ بندی کے باوجود اسرائیلی حملے میں 2 فلسطینی شہید، کئی زخمی۔ خان یونس میں اسرائیلی آبادکاروں کی فائرنگ سے شہید 4 فلسطینیوں کی تدفین میں رقت انگیز مناظر۔ ایران 9 روز قبل جیسا تھا اب ویسا محفوظ نہیں رہا۔ ایرانی بحریہ تباہ کر دی گئی، حملوں میں 90% کمی آ چکی۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران سے جنگ پر تمام آپشنز کا جائزہ لے رہے ہیں، وائٹ ہاؤس کا بیان۔ دشمن ایران اور ہمسایہ ممالک کو لڑانا چاہتا ہے۔ پڑوسی ممالک میں صرف ایران پر حملہ کرنے والے اڈوں کو ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان ممالک یا ان کے عوام کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ ایران ہمسایہ ممالک کو بھائی سمجھتا ہے اور اچھے تعلقات کا خواہش مند ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا وضاحتی بیان سامنے آ گیا۔ سعودی وزارت دفاع کا ریاض کے ڈپلومیٹک کوارٹر پر داخل گئے 8 ایرانی ڈرونز مار گرانے کا دعویٰ۔ حملے جاری رہے تو سعودیہ امریکی افواج کو ایران کے خلاف اڈے استعمال کرنے کی اجازت دے سکتا ہے۔ سعودی وزیر خارجہ نے ایران کو خبردار کر دیا۔ سعودی سرزمین اور توانائی اسٹرکچر پر حملے برداشت نہ کرنے کا اعلان۔ چین کا ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملے فوری روکنے کا مطالبہ۔ طاقت کا استعمال مسئلے کا حل نہیں۔ ایران میں حکومت کی تبدیلی کے منصوبے کو مقبولیت نہیں ملی۔ چینی وزیر خارجہ نے بڑے ممالک سے تعمیری کردار ادا کرنے کی اپیل کر دی۔ ایران پر زمینی حملے کے باوجود ریجیم چینج کا امکان نہیں۔ امریکی نیشنل انٹیلیجنس کونسل کی رپورٹ میں اہم انکشاف سامنے آ گیا۔ رپورٹ کے مطابق بڑے حملے کے باوجود ایرانی حکومت کو ہٹانے کے امکانات کم ہیں۔ رپورٹ میں جنگ 4 سے 6 ہفتوں میں ختم ہونے کے ٹرمپ انتظامیہ کے دعووں پر سوالات بھی اٹھا دیے گئے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو کا ایران کے خلاف جنگ پوری طاقت کے ساتھ جاری رکھنے کا اعلان۔ ایران کی فضائی حدود پر مکمل کنٹرول حاصل کرنے کا دعویٰ بھی کر دیا۔ بنجمن نیتن یاہو نے کہا کہ پاسداران انقلاب کے جو اہلکار ہتھیار ڈال دیں گے انہیں نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ ایران کا روس سے اسٹریٹیجک پارٹنرشپ جاری رکھنے کا اعلان۔ روس کے ساتھ فوجی تعلقات
नए हैं न खुफिया। दोनों ममालिक के फौजी ताल्लुकात कई साल से कायम हैं। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का सहाफ़ी के सवाल पर जवाब। ईरान के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल का कई अमरीकी फौजियों को कैदी बनाने का दावा। अमरीका अपने गलत अंदाजों की दलदल में फंस चुका। ईरान पर हमले करके ट्रंप अपने मकासद हासिल करने में नाकाम रहा। ईरानी कौम दुश्मनों के खिलाफ मुत्तहिद है, जंग नहीं चाहती, लेकिन जाहिरियत करने वालों को सजा मिलनी चाहिए। अमरीका को अपने इक़दामात की कीमत चुकाना होगी, अली लारेजानी ने पैगाम दे दिया। जंग से मुतासिरा दुबई के अरबपति ताजिर ने अमरीका से खरबों डॉलर्स तलाफी का मशवरा दे दिया। जंग एक माह तक जारी रही तो खित्ते के ममालिक ट्रंप इंतजामिया को नुकसान का इजाला करवाएं। खलफ अहमद अल हबतूर का CNN को इंटरव्यू। दुबई एयरपोर्ट के करीब ड्रोन गिरने के बाद मुअत्तल परवाजें जुज़वी तौर पर बहाल। मुसाफिरों का दुबई से निकलने के लिए रश बढ़ गया। महदूद परवाजों के बाइस मुश्किलात का सामना। ईरान में फंसे पाकिस्तानियों को वतन वापस लाने की कोशिशें। ताफ्तान के रास्ते मजीद 142 पाकिस्तानी क्वेटा पहुंच गए। वापस आने वालों में ज्यादातर तालिबे इल्म शामिल हैं। खलीज की जंग से दुनिया भर में तशवीश। ईसाइयों के रूहानी पेशवा पोप लियो ने एक बार फिर मशरिक़ वस्ता जंग के खात्मे की अपील कर दी। तेल बहरान पर वफाकी वज़रा की सूबाई क़यादत से राबते सलाह मशवरे। वज़ीर ख़ज़ाना और वज़ीर पेट्रोलियम के वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात। पेट्रोलियम मसनूआत की बचत के लिए इक़दामात पर इत्तेफ़ाक। मोहम्मद औरंगज़ेब और अली परवेज़ मलिक की वज़ीर आला सिंध के साथ बैठक। तवानाई बहरान से निपटने के लिए बचत के हंगामी इक़दामात पर गौर। वफाकी वज़रा ने कल तक पेट्रोल के 3 जहाज़ पाकिस्तान पहुँचने की उम्मीद ज़ाहिर कर दी। खैबर पख्तूनख्वा अपने लोगों के लिए तकरीबन 14 से 15 लाख वो लोग जिनके मोटरसाइकिल्स रजिस्टर्ड हैं उनके लिए 2200 रुपये का ऐलान करती है कि उनके लिए जो 55 रुपये का इजाफा पेट्रोल में हुआ है वो सूबाई हुकूमत उनके लिए पे करेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की एक बार फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर तनकीद। 14 लाख शहरियों के लिए 2200 रुपये फीकस रिलीफ का ऐलान। BRT के किराए ना बढ़ाने और खवातीन के लिए 20 बैंक बसेस चलाने की नवीद। पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफे के बाद इंटरसिटी बसेस के किरायों में इजाफा। पेशावर से दीगर शहरों को जाने वाली बसेस के किराए 300 रुपए तक बढ़ गए। कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन महंगी। कोचेस का किराया 30 रुपए तक बढ़ गया। कराची में डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन का दूध की कीमत 320 रुपए फी लीटर करने का मुतालबा। ख्वाजा आसिफ ने मशरक़ वस्ता की सूरत हाल से आलमी मईशत के लिए खतरा करार दे दिया। आलमी मईशत हिलकर रह गई। पेश की इक़दामात ना करते तो पेट्रोल 375 रुपए फी लीटर होता। वज़ीर दिफा का बयान। मुल्क में महंगाई उरूज पर अवाम को माह सियाम के महीने में रिलीफ नहीं मिल सका। सब्जियों और फलों की मुमांगी कीमतें वसूल की जाएंगी। शिकायत आम हो गई। ऑपरेशन गज़ब लिल हक़ के तहत अफगानिस्तान में तालिबान वजीम के 64 ठिकानों पर फ़ज़ाई हमले। तालिबान वजीम के 583 कारिंदे हलाक, 795 जख्मी। 242 चेक पोस्टें तबाह कर दी गईं। 38 पर कब्जा कर लिया गया। 205 टैंक्स, 72 गाड़ियां और तोपखाने तबाह कर दिए गए। वफाक वज़ीर इत्तलात ने तफसीलात जारी कर दी। पाक अफगान सरहद चमन सेक्टर पर पाक फौज ने फितनाल खारिज की दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बना दिया। फायरिंग के तबादले में एक खारिजी हलाक और दीगर जख्मी हालत में फरार। 5 IEDs और बाढ़ काटने का सामान बरामद। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की ताबड़तोड़ कार्रवाइयां। बाजौड़, बन्नू और डेरा इस्माइल खान समेत मुख्तलिफ इलाकाजात में 13 खारिज हलाक।
खारिज के ठिकानों को ताक कर निशाना बनाया गया। असलहा और गोला बारूद बरामद कर लिया गया। ISPR के मुताबिक खला खारिज इलाके में दहशतगर्दी की मुताबिक कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। सदर जरदारी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कामयाब कार्रवाइयों पर फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश। कोयटा में नामालूम अफराद की फायरिंग से पुलिस ऑफिसर मिठा खान शहीद। CTD में तैनात मिठा खान कोयटा के कई थानों में SHO तैनात रहे। कराची में खवातीन को मुफ्त स्कूटी तकसीम करने की एक और तकरीब। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि अब खवातीन सड़कों पर स्कूटी चलाती नजर आएंगी। स्कूटी के लिए सिर्फ ड्राइविंग लाइसेंस दरकार होगा। इस्लामाबाद के सेक्टर F6 में औरत मार्च। पुलिस ने बगैर इजाजत मार्च पर 11 खवातीन और 3 मर्द गिरफ्तार कर लिए। दफा 144 के खिलाफ वर्जी की गई। पुलिस का मौक़िफ़। अटक पुलिस को बॉर्डर चेक पोस्ट और दरियाई पोस्टों के लिए ड्रोन कैमरे फराहम कर दिए गए। जदीद ड्रोन कैमरों से मौसम निगरानी की जा सकेगी। हालिया आलमी कशीदगी और बहरान के बावजूद पाकिस्तान की सरहदी तिजारत और सफर मुस्तहकम और फाल। खलीज में गैर यकीनी किसी सूरत हाल के बावजूद सोस ड्राई पोर्ट पर तिजारती सरगर्मियां 24 घंटे जारी। खलीज की जंग की आड़ में भारत ने मुसलमानों के साथ मजहबी तासुब। इंतहा पसंद हिंदुओं की ईरानी रहबर आला की शहादत पर मुसलमानों का सोग एक आंख न भाया। इंतहा पसंद एक बार फिर मुसलमानों की भारत से वफादारी पर सवाल उठाने लगे। अमेरिका एयरलाइन साउथ वेस्ट की परवाज में बम की इत्तला ने मुसाफिरों को खौफजदा कर दिया। दौरानी परवाज एक मुसाफिर ने बम धमाके की धमकी दी। तैयारे को हार्टफील्ड जैक्सन एयरपोर्ट की जानिब मोड़ दिया गया। लैंडिंग के बाद सिक्योरिटी टीम ने जहाज के अंदर दाखिल होकर मुसाफिर को हिरासत में लिया। बम की इत्तला झूठी निकली। न्यूयॉर्क के मेयर ज़ोहरान मामदानी पर कातिलाना हमले की कोशिश। ज़ोहरान मामदानी के घर के बाहर बम रखा गया था। पुलिस ने बम रखने वाले 2 अफराद गिरफ्तार कर लिए। कौमी क्रिकेट टीम वनडे सीरीज के लिए बांग्लादेश पहुंच गई। 3 वनडे मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज के मैचेस 11, 13 और 15 मार्च को शेरे बांग्ला क्रिकेट स्टेडियम ढाका में खेले जाएंगे। कौन बनेगा शॉर्ट टर्म क्रिकेट की दुनिया का बादशाह? T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान घुमसान का रन। भारत के 256 रन हदफ के ताक़ुब में न्यूजीलैंड की पेशकदमी। और एक्शन सीरीज द बॉयज की आखिरी सीजन की झलकियां जारी। सीरीज 8 अप्रैल को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर रिलीज की जाएगी।